Bismillahirrahmanirrahim. Beta, as you know that we had last time read up to the point here. We left it here that when we said that she and her father, they were coming back to the car, and they had discussed all the matters that were there with her mother, her disease, and how much days she left with to live, and all the matters, all the problems, all that disease that doctor told to her father, and then he transformed, then he shared with her daughter, and they discussed a lot of things about her. And now this was the time they came to their car, their vehicle, and they were now moving back to home. Okay, so today we have to start from here. Here comes our start. So she says, so that's why I can't let you go away, Midge. Her father's voice was very low, and he didn't seem to realize that he had called her by the babyish name. So what he says, so that's why, यही वजह थी कि I can't let you go away. When his father was telling her each and everything, and then he said कि यही वजह है कि मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहता. Where Mary Hill College, where she was supposed to join that year, but due to her mother's illness, she was stopped by her father to stay at home with her mother and spend time with her. Okay, her father's voice was very low, and he didn't seem to realize that he called her by the babyish name she had discarded when she started the first grade. कहता है कि अब राइट वो हमें ये बताती है कि हर फादर के उसके वालिद ने हर फादर्स वॉइस वाज वेरी लो, उसके ये बताते हुए कि मैं तुम्हें इसी वजह से कुछ बताना नहीं चाह रहा था, मैं इसी वजह से तुम्हें रोकना चाह रहा था कि तुम्हारी माँ के पास दिन कम है. हर फादर्स वॉइस वाज वेरी लो, ये बताते हुए उसके वालिद की आवाज़ बड़ी धीमी थी, बड़ी मध्यम थी, बड़ी लो थी. एंड ही डिडंट सीम टू रियलाइज, और ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा दिख रहा था कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ दैट ही कॉल्ड हर बाय द बेबीश नेम शी हैड डिस्कार्डेड व्हेन शी स्टार्टेड टू फर्स्ट ग्रेड, कि उसने अपनी बेटी को उस नाम से पुकारा, उसके बचपन के नाम से. बेबीश नेम मीन बेटा बचपन के नाम से पुकारा था, जो कि वो अब जब वो फर्स्ट ग्रेड में आई थी तब से वो भुला चुकी थी, तब से वो छोड़ चुकी थी. ठीक है, हर बेबीश नेम. ओके, then beta Midge means Midge was that her babyish name, ठीक है, by which her father used to call her when she was a little child, Midge. Okay, so what he said further, it isn't just your mother I'm thinking about, it's me, I need you. अब उसके वालिद ने उसे क्या कहा कि मैं तुम्हारी माँ के मुतालिक नहीं सोच रहा, बल्कि मैं अपने मुतालिक सोच रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. ओके, देन ही सेड, she looked at him quickly and her heart twisted with pity. He did need her, he would need her more than ever. She looked at him quickly. तो जब उसके वालिद ने, मिंटा के वालिद ने उसे ये बात कही, तो उसने जल्दी से, अचानक एकदम से अपने वालिद की तरफ देखा. एंड her heart twisted with pity, और उसका दिल उस पिटी से, उस हमदर्दी से मोल्ड हो गया, ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया, बहल गया. ही डिड नीड हर, उससे उसके वालिद को उसकी ज़रूरत थी. ही वुड नीड हर मोर देन एवर, और उसे पहले से भी ज़्यादा अपनी बेटी की ज़रूरत थी. इन द कार शी सैट वेरी क्लोज टू हिम, कार में वो अपने वालिद के बहुत ज़्यादा नज़दीक बैठी. वी डिडंट गेट द क्लैम्स, शी रिमेंबर्ड हिम वंस बट ही ओनली नोड इट. अब मिंटा जब कार में अपने वालिद के साथ बैठी हुई थी, उसने अपने वालिद को एक दफ़ा ये याद करवाया. शी रिमाइंडेड हिम, उसने याद दहानी करवाई, उसने दोबारा याद करवाया. वी डिडंट गेट द क्लैम्स, हमने तो वो सी फूड लिया ही नहीं, बट ही ओनली नोड इट, लेकिन उसने उसके मिंटा के वालिद ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया. यानी विद दिस वी कैन गेट द आइडिया दैट हर फादर brought her there on the beach just to tell about the condition of her mother and how much time was left to her. And what happened next? Just before they reached home, he reached over and took her hand in a tight, hurting grip. Just before they reached home, घर पहुंचने से पहले he reached over, वो
मिंटा के पास गया एंड टुक हर हैंड और उसका हाथ पकड़ा एंड अ टाइट हर्टिंग ग्रिप, मजबूती से सख्त ग्रिप की उसके हाथ पे। वी कांट टेल हर, और अब मिंटा के वालिद ने उससे क्या कहा, वी कांट टेल हर, हम ये वी कांट टेल हर मिंटा, हम तुम्हारी माँ को ये बात नहीं बता सकते, ठीक है। द डॉक्टर लेफ्ट इट टू मी एंड आई सेड नॉट टू टेल हर, डॉक्टर ने ये सारी बातें सिर्फ मुझे बताई हैं और मैंने कहा था कि मैं अपनी बीवी को यानी मिंटा की माँ को ये बातें नहीं बताऊंगा। We have to let her have this last little time without that hanging over her. अब मिंटा का वालिद जो है वो अपनी बेटी को क्या बातें बता रहे हैं, उसकी माँ के मुतल्लक, अपनी बीवी के मुतल्लक उसको एडवाइस कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि वी हैव टू लेट हर हैव दिस लास्ट टाइम, यानी कहता है कि हमें उसे ये बातें नहीं बताने, हमें उसका ये आखिरी वक्त उसे गुजारने देना है। दिस लास्ट लिटिल टाइम, ये बहुत कम वक्त जो उसके पास रह गया है ये उसे गुजारने देना है। विदाउट दैट हैंगिंग ओवर हर, बगैर उसे कोई थ्रेटन किए, बगैर उसे कोई इस तरह के मुसीबत में डाले कि तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है जीने के लिए, ठीक है। वी हैव टू गो ऑन एज इफ एवरीथिंग वर एग्जैक्टली द सेम। वी हैव टू गो ऑन, हमें ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है, हमें ऐसे ही उसके साथ मिलना जुलना है, हमें ऐसे ही वक्त गुजारना है। एज इफ के जैसा कि एवरीथिंग वो एग्जैक्टली द सेम, कि हर एक चीज़ पहले की तरह है, एज इट वॉज बिफोर। ओके, शी नोडेड टू शो दैट शी अंडरस्टूड। शी नोडेड, उसने अपना हाँ में सर हिलाया रजामंदी से। नोडेड एंड एंटी नोडेड, आई एक्सप्लेन यू बिफोर। शी नोडेड टू शो दैट शी अंडरस्टूड, उसने अपना सर हिलाया कि ये एक्सप्रेशन दे कि वो समझ गई है। आफ्टर अ मोमेंट शी स्पोक पास द एक इन हर थ्रोट, आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद, शी स्पोक पास द एक इन हर थ्रोट, उसने अपने गले में एक दर्द को महसूस किया। अबाउट स्कूल, स्कूल के मतलब आई टेल हर दैट आई डिसाइडेड टू वेट अंटिल नेक्स्ट ईयर, उसने अपने गले में कुछ कहा। और क्या कहा, यानी उसने देखा कि ये जैसे कोई बात गले में नहीं अटक जाती, इंसान अपने आप से बात करता है बेटा। सो क्या कहा कि मैं अपनी माँ को ये बताऊंगी कि दैट आई डिसाइड, कि मैंने फैसला किया है टू वेट अंटिल नेक्स्ट ईयर, कि मैं अगले साल तक वेट करूंगी, यानी इस साल। आई वोंट जॉइन मैरी हिल दिस टर्म, रादर आई विल गो दैट वे, आई विल गो देयर इन द नेक्स्ट टर्म, इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, It seemed impossible that life could go on exactly as before. It seemed, ऐसा महसूस हुआ, ऐसा दिख रहा था, impossible, कि ये नामुमकिन था, that life could go on exactly as before, कि ज़िंदगी उसी तरह ही चलती रहे जिस तरह से पहले चल रही थी। As they were very happy family of 3 members and they were sharing all the good-natured fun, all the good-natured things about the neighbors, about the things that they had to do, about Martha's upcoming couple of days, couple of weeks when she had to join that Maryhill College, and all the things as they were before. So क्या कहती है मिंटा, कहती है कि अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वैसे ही जिंदगी का चलते रहना, खुशियों भरा होना, ये नामुमकिन था। A small was as snug and warm and happy as though no shadow had touched them. कहती है द स्मॉल प्राइवेट वर्ल्ड, वो छोटी सी दुनिया, पीपल्ड बाय द 3 of them, जिसमें 3 लोग थे, यानी अब वर्ल्ड किसको कह रहे हैं, उनके घर को कहता है, वो ऐसा घराना, वो ऐसी उनकी दुनिया जो थी, कहता है जिसमें 3 लोग थे, वॉज एज स्नग, वो बड़े कंफर्टेबल थे, कोजी थे, यानी एंड वार्म एंड हैप्पी, और वो इतनी गर्मजोशी थी और खुशियाँ थी। एज दो नो शैडो हैड टच्ड देम, यहाँ पे बेटा शैडो मीन्स एज नो ट्रायल, नो चैलेंज अराइव्ड इन देयर लाइफ, यानी उनकी लाइफ जो थी वो इजी गोइंग थी, बिल्कुल स्मूथ सेलिंग थी, आसानी से अच्छी ज़िंदगी, खुशो खुरम ज़िंदगी, आरामदेह ज़िंदगी गुजर रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, जैसे कोई मसला था ही नहीं। They watched television and argued good-naturedly about the programs. वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखा करते थे और उनके मुताबिक बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू किया करते थे, आर्ग्यू किया करते थे। Minta's friends came and went, and there was a usual round of parties and games.
इसी दौरान फिर कहता है, यानी अब वो लाइफ का वो स्टाइल बता रही है कि क्या हुआ। इसी दौरान मिंटा की दोस्तें भी आती रही, वो आती जाती रही, और पार्टीज भी होती रही, और गेम्स भी होती रही। तो अब मिंटा हमें क्या बताती है कि व्हाट हैपेंड देन। तो क्या कहती है कि मिंटा के फ्रेंड्स आती रही, वो जाती रही, यानी रूटीन वर्क जो थे, जो यूजुअल एक्टिविटी थी, दैट वाज गोइंग ऑन एज इफ दैट लाइफ वाज एज सेम एज बिफोर। लाइफ ऐसी थी जैसे पहले थी, इट वाज गोइंग ऑन। ओके, they showed this to their mom, she showed this to her mother, and because she promised with her father, and she proved herself to be strong before, and now she was behaving like a mature girl. Okay, previously she wasn't mature, okay, to this extent, but now when she came to know about her mother, she just behaved like a mature girl. This is the change, this is the transition, beta. And this also this is also true of life. When we see the challenges, when we face the challenges, we get mature. Previously she had nothing to face, they were just living life smoothly, a happy and snugging life. But now when she came to know, she has a very short span of time left with her mother. Okay, she has to spend only a couple of weeks with her mother. Then she realized each and everything. Then she realized the importance of life. Okay, then what she said, I really and must get at my Christmas shopping. She mentioned the day she was wrapping trick or treat candy for Halloween. अच्छा, तो उसकी माँ ने क्या कहा बेटा, आई रियली मस्ट गेट एट मीन आई रियली हैव टू रीच, आई रियली हैव टू गो माई क्रिसमस शॉपिंग। उसकी माँ कहती है कि मुझे अपनी क्रिसमस की शॉपिंग पे जाना है। शी मैंशन द डे शी वॉज रैपिंग ट्रिक और ट्रीट कैंडी फॉर हैलोवीन। बेटा ट्रिक एंड ट्रीट मीन्स के it's 31st October's night, which is believed that at this night all the people who have died, their souls they come out of their graves, and this on this day children they dress up like magic. Okay, they take over, they get up with the magical a sort of clothes, okay, costumes. Candy for Halloween. Halloween वो दिन है बेटा जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि मुर्दे कब्रों से आते हैं, और इस दिन में ट्रिक और ट्रीट यानी बच्चे कैसे ड्रेसअप होते हैं, बच्चे ऐसे फियरफुल यानी कि कपड़े पहनते हैं या मैजिकल सॉर्ट ऑफ ड्रेसिंग करते हैं. ओके, मिंटा शुक हर हेड एंड साइड गस्टली. मिंटा ने अपना सर हिलाया एंड साइड गस्टली, और एक ऊंची एक सडन जो बर्स्ट थी, जो आवाज़ थी सांस की, उसने गहरी सांस ली. हर मदर स्टार्टेड दिस. उसकी माँ ने ये कहा कि आई मस्ट गेट एट माई क्रिसमस शॉपिंग. मैं ज़रूर अपनी क्रिसमस की शॉपिंग करने जाऊंगी. रूटीन एवरी स्प्रिंग एंड फॉलोड इट अप अंटिल आफ्टर थैंक्स गिविंग, बट शी नेवर एक्चुअली गॉट अराउंड टू इट अंटिल 2 or 3 days बिफोर क्रिसमस. अब उसकी माँ ने क्या कहा कि मैं ज़रूर उसकी माँ कहती थी कि मैं ज़रूर शॉपिंग क्रिसमस की करने जाऊंगी, और ये उसकी रूटीन थी हर स्प्रिंग में, और यही रूटीन वो फॉलो करती थी अनटिल उस वक्त तक जब थैंक्स गिविंग, एक्सप्रेशन ऑफ गिविंग थैंक्स टू गॉड, यानी जब तक ये एंड अप नहीं हो जाता था वो कभी भी आराम से नहीं बैठी थी. बट शी नेवर एक्चुअली गॉट अराउंड टू इट अंटिल 2 or 3 days बिफोर क्रिसमस, और उसने कभी परसुएड नहीं किया 2-3 दिन पहले तक क्रिसमस से. अच्छा, फिर क्या कहा, इट वॉज अमेजिंग दैट मिंटा कुड लॉफ एंड से ओ यू द वे शी डिड ईयर आफ्टर ईयर. और ये बड़ा शानदार महसूस होता था, ये बड़ा अच्छा लगता था कि मिंटा को लॉफ एंड से, और मिंटा हंस के उससे कहती थी ओ यू, ये आप हैं, द वे शी डिड ईयर आफ्टर ईयर, आप हर साल ऐसे ही करती रहती थी. अब मिंटा कहती है कि यानी ये मुझे कितना अच्छा लगता कि मैं अपनी माँ से ऐसा कह सकती. इट वॉज अ नाइफ टर्निंग इन हर हर्ट व्हेन हर मदर स्ट्रेटन्ड अप फ्रॉम द गे cellophane wrapped candies and brushed a stray wisp of taffy-colored hair back from one flushed cheek. कहता है it was a
नाइफ टर्निंग, ये बिल्कुल ऐसा ही एक एहसास था कि उसके दिल पे छुरी चल गई हो, उसके दिल में छुरी चल गई हो। व्हेन हर मदर, जब उसकी माँ स्ट्रेटन अप सीढ़ी ऊपर खड़ी हुई, फ्रॉम द गे टेलीफोन रैप्ड कैंडीज ऑन ब्राइट कलर की ट्रांसपेरेंट वो प्लास्टिक से जब वो कैंडीज की रैपिंग करी थी फॉर अपकमिंग क्रिसमस, एंड ब्रश अ स्ट्रे विस्प ऑफ टैफी कलर्ड हेयर बैक फ्रॉम वन फ्लश चीक, और उसने स्ट्रे विस्प में हटाए ऑफ टैफी कलर्ड पिंकिश कलर के हेयर अपने बालों को फ्रॉम वन ऑफ द फ्लश चीक, अपने उस सुर अपने उस गाल से, ठीक है, चीक कहते हैं गाल को। डोंट लॉफ, मत हंसो, शी सेड, उसने कहा, प्रिटेंडिंग टू बी स्टर्न, और ज्यादा सीरियस होते हुए, यू नो, तुम्हें ये पता है कि यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी, कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। अब मिंटर की मदर उससे ये कह रही है। इट वॉज अ वार्मिंग डो। अच्छा बेटा यहाँ तक ही करते हैं, यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, यू में आस्क मी इन द कमेंट, और इसको बेटा रिवाइज करना है, इसको याद रखना है। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।